गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन सब्जेक्ट का ਆਪਾਂ टॉपिक करांगे एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलोसफी। बेटे फिलोसफी ਤੇ एजुकेशन ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਐਂਡ एजुकेशन। सेकंड ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ फिलोसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन ਤੇ थर्ड पार्ट ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ एजुकेशन डिपेंड ऑन फिलोसफी कि एजुकेशन फिलोसफी ਦੇ ਉੱਤੇ किस तरीके ਨਾਲ डिपेंड है। एजुकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ एजुकेशन ਦਾ मतलब है एजुकेटिव वर्ड्स ਤੋਂ लिया गया है टू ड्रा आउट बाहर करना ਤੇ फिलोसफी ਦਾ मतलब है फिलोस प्लस सोफिया ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ वर्ड जिस ਦਾ मतलब है लव ऑफ विजडम ਸਿਆਣਪਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਪਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਟੂ ਸਾਈਡਡ ਆਫ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਹਨ। ਜੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ एम्स निर्धारित करती है ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਥਿੰਕੇਬਲ ਵਿਦਆਊਟ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ is unthinkable without philosophy। एजुकेशन इज अनथिंकेबल विदाउट फिलोसफी। बेटे देखो फिलोसफी तो बिना एजुकेशन बारे सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜੀ एजुकेशन है ਜਿਹੜੀ फिलोसफी है वो थ्योरी ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ है। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ऋग्वेद यजुर्वेद अर्थवेद सामवेद जिन्ने वेद होए ने जिन्ने भी शास्त्रां दी गीता दी या कुरान दी गल करिए या श्रीमद् भागवत गीता दी गल करिए मतलब जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथां दी गल करिए या जिन्नियां भी बुक्स दी गल करिए तां ओह जिहड़े ने ओह लिखियां गईयां तां ही उन्हां नूं किरिया दे विच लिआंदा गया तां ही जिहड़ी अगे नॉलेज उन्हां दी प्रोवाइड होई। यानी कि फिलासफी जिहड़ी है एक फिलासफी जिहड़ी एक फिलासफर दे वल्लों दित्ती जांदी है ਤਾਂ एजुकेशन ਨੂੰ किस तरीके ਦੀ एजुकेशन ਨੂੰ डायरेक्शन प्रोवाइड ਕਰਵਾਉਂਦੀ है। एजुकेशन ਨੂੰ जो है ਜਿਹੜੀ फिलासफी अपने आप इंडिपेंडेंट है ਤੇ एजुकेशन उस ਤੇ डिपेंडेंट है। हाउ कैन वी से दैट क्योंकि विदाउट फिलासफी वी कैन मेक एम्स ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦ एम्स बाय फिलासफी। ਜਿਹੜੀ फिलासफी है एजुकेशन ਦੇ एम ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ है क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਲਾਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਥਿੰਕੇਬਲ ਵਿਦਆਊਟ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਏਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਉਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਲਿਵ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਵਾਕ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਏਮ ਜੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।
पहले ही दस चुकी हाँ कि फिलोसफी ही जिहड़ी एजुकेशन नूं डायरैक्शन दिंदी है, फिलोसफी ही ये सानूं की कहते हैं डेस्टिनेशन साडा एक मकसद दसदी है, साडी मंजिल बारे दसदी है कि साडी मंजिल की है। जिवें आपां गल करिए कि एपिस्टेमोलॉजी दे विच कहा जाता है जिहड़ा अपनी गल पहला रियलिटी दे विच एजुकेशन की मन्नी जाती सी कि सिੱਖਿਆ ਉਹ है साडी जिंदगी दा एम वो है कि असी अपनी मुक्ति नूं प्राप्त करना है या साडी आत्मा नूं प्राप्त करना है, या कह देंगे ना भी साडे अंतिम समय का जो मेन मकसद है, साडी जिंदगी का मेन मकसद है परमात्मा की प्राप्ति। सिੱਖਿਆ का सिर्फ यही उद्देश्य हुंदा सी कि अपने आप नूं जानना, आत्मा नूं जानना, परमात्मा नूं जानना, मोक्ष की प्राप्ति करना। ये जिहड़ा पहला दी जिहड़ी एजुकेशन का पर्पस है, तो फिलोसफी इस एजुकेशन के पर्पस नूं रिलेट जिहड़ी फिलोसफी सानूं पर्पस दिंदी सी, एजुकेशन उस नूं प्राप्त करने दे विच साडी हेल्प करदी सी। एजुकेशन के राही ही असीं जिहड़ा है एक योग करना या एक एक्सरसाइजेस करना या रीडिंग करना, पढ़ना, मतलब किसी भी धार्मिक ग्रंथ नूं पढ़ना, वो सानूं सिੱਖਿਆ दे थ्रू जिहड़ा है आउंदा सीगा। तां फिलोसफी जिहड़ी है सानूं एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड करवा दिंदी है कि व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन। आवर डेस्टिनेशन इज टू मतलब मोक्ष को प्राप्त कर, टू अचीव मोक्षा, जिन्हों आप कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, टू अचीव गॉड, ठीक है। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए फिलोसफी सानू डेस्टिनेशन दे दिंदी है कि असी अपनी लाइफ दे विच की करना है। कहते एक नॉलेज सानू जिहड़ी है एक नैचुरल रीजन के थ्रू नॉलेज मिलती है, नॉलेज जिहड़ी मिलती है सानू ओहदा नैचुरल कुदरती कारण हुंदा है जिहड़ा असी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ते नाल ही कहते साडे माइंड की जिहड़ी पावर ऑफ माइंड है उस नूं भी की है एक रीजन मिलता है। फिलोसफी जिहड़ी साडी पावर नूं जागरूक करती है, उत्तेजित करती है, अवेक करती है, जिस दे नाल एजुकेशन की करता है, एजुकेशन सानू हेल्प करता है, एजुकेशन सानू डायरेक्शन देता है कि असी उस नॉलेज नूं किस तरीके नाल प्राप्त करना है, ते ਉਹ नॉलेज साडी पावर माइंड की पावर नूं किवें इंक्रीज करती है, किवें सानू सोसाइटी दे विच जीना सिखाउंदी है। नेक्स्ट आ जाता है 3 मेन ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। 3 मेन ब्रांचेस of philosophy। 3 main branches of philosophy determine three important aspects of education। Determine 3 important aspect of education। कहते हम ਜਿਹੜੀਆਂ फिलॉसफी ਦੀਆਂ 3 मेजर ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 मेन ब्रांचेस ने, ਕਿਹੜੀਆਂ मेन ब्रांचेस ने ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਤਾਂ 3 मेन ब्रांचेस ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ? ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ मेन ब्रांचेस है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। फर्स्ट ब्रांच ਜਿਹੜੀ है मेटाफिजिक्स, सेकंड वन एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड वन एक्सियोलॉजी। क्लियर? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 मेन ब्रांचेस ने कहते ये ਜਿਹੜੇ एजुकेशन ਦੇ 3 ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿक्स ਕੀ ਹੈ? फर्स्ट वन ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿक्स। ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿक्स ਦਾ मतलब है बियॉन्ड टू मेटाफिजिक्स। ਹੁਣ मेटाफिजिक्स ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? बियॉन्ड टू नेचर, बियॉन्ड टू
नेचर कुदरत तो परे कहते कुदरत तो परे किस दी गल करते हैं वो रियलिटी दी गल करते हैं वो परमात्मा दी गल करते हैं वो गॉड दी गल करते हैं वो कहते डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी की जेड़ी है एक साडी अध्यात्मिकता का जड़ा है विकास होना चाहिए है फिलॉसफी की कहती है जी एजुकेशन है फिलॉसफी ते डिपेंड है जिवें कि तुहानूं पता ही है कि पुराने समय दे विच की कीता जांदा सी ਜਿਹੜੀ अपने अस्त्र शस्त्र की सिक्ख्या के नाल ਜਿਹੜੀ अपनी आम सी एजुकेशन के नाल एक रिलीजियस एजुकेशन इज कंपलसरी उस टाइम ते ਜਿਹੜੀ रिलीजियस एजुकेशन सी बहुत ज़्यादा कंपलसरी सी ਹੁਣ ਦੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ स्पेशल उस धर्म की पढ़ाई भी कराई जाती है जिस धर्म के नालों बच्चे बिलोंग करते हैं जिस धर्म के नालों बच्चे जुड़े हुए हैं तो कहने का भाव कि मैटाफिजिक्स की कहता है कि स्पिरिचुअलिटी की गल करता है आत्मा की गल करता है परमात्मा की गल करता है तो वो की है जी साडी एजुकेशन है उस फिलोसफी के उत्ते डिपेंड है क्योंकि मोरालिटी जिन्नी भी मोरालिटी सानू मिलती है जिन्ना भी साडे मन दे विच एक विश्वास कॉन्फिडेंस कहते बिलीव कहते हैं वो बिलीव कित्थों बढ़ता है और बिलीव सिस्टम सानू तां ही मिलता है जे वो फिलोसफी है कि परमात्मा है जो करता है चंगा ही करता है तो जो करेगा वो चंगा ही करेगा जदों इस फिलोसफी के उत्ते असीं चलदे हां जदों इस भावना के उत्ते चलदे हां तो जिहड़ी एजुकेशन है सानू उस ट्रुथ के उत्ते उस सच्चाई के उत्ते चलण लई हेल्प करदी है कि जिहड़ा बिलीव तां ही सानू आएगा जे असीं उस एजुकेशन के नाल रिलेटेड होवांगे ठीक है जी जिहड़ी फिलोसफी है सानू उस एजुकेशन के नाल एजुकेशन उस फिलोसफी ते डिपेंड होण करके सानू रिलीजियस एजुकेशन के नाल भी जोड़दी है कि बियॉन्ड एक मैटीरियलिस्टिक तो हट के साडियां अपनियां भी कुछ भावनावां ने साडी भी एक आत्मा है ਜਿਹੜੀ कि परमात्मा नाल मिलनी चाहिए है ਜਿਹੜੀ कि जिस बारे सानू की जानकारी होनी चाहिए है नेक्स्ट आ जाता बेटे एपिस्टेमोलॉजी फर्स्ट वन सी सेकंड वन है एपिस्टेमोलॉजी ਹੁਣ एपिस्टेमोलॉजी की है एपिस्टेमोलॉजी ਦੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨॉलेज एपिस्टेमोलॉजी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਿਊਰੀ of knowledge ये ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਮ ਹੈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ क्योंकि जेड़े ज्ञान का कोई खात्मा ही नहीं है तो
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਗੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ ਐਕਸੀਓਲੋਜੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸੀਓਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਐਕਸੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਸੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸੀਓਲੋਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਤਿੰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਥਿਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਥਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਥੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਥੈਟਿਕ। थर्ड आ जाता है अपना लॉजिक। थर्ड अपना क्या आ जाता है? लॉजिक। तो जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ, ਐਸਥੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ। ਹੁਣ ਐਥਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ मोरालिटी भी देती है, नैतिकता की भी गल करती है कि जड़ा की चंगा। एथिक्स की जे गल करिए, एथिक्स दे विच बेटे बैड एंड गुड, रॉन्ग राइट रॉन्ग की गल की जाती है। जिहड़ी फिलासफी है वो एजुकेशन नूं दसदी है, एजुकेशन दे डायरेक्शन देती है एजुकेशन दे राही कि किहड़ी चीज़ साडे लई चंगी है ते किहड़ी चीज़ साडे लई बुरी है, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, what is right and wrong, sorry right, I have write down second spellings, right and wrong, good bad, true false, क्लियर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲਿਟੀ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ। यानी कि एजुकेशन साडी है जो इस चीज़ बारे सानू जानकारी हो जाती है, साडी जिहड़ी चीज़ की क्वालिटी बन जाती है कि सानू पहचान होने लग जाती है कि की गलत है, की ठीक है, की चंगा है, की माड़ा है। तो सानू किस तरीके नाल हुंदी है? एजुकेशन के थ्रू। पर एजुकेशन नूं कित्थों मिलती है वो चीज़? फिलासफी के थ्रू। ठीक है। एथिक्स की जिहड़ी गल कीती है वो फिलासफी का ही एक पार्ट है। नैक्सट आ जाता है एस्थैटिक। एस्थैटिकता दे विच ब्यूटी की गल की जाती है बेटे, सुंदरता की गल की जाती है कि हर एक चीज़ दे विच जिहड़ा इंसान पढ़िया लिखिया है, लिटरेट है, वो हर एक चीज़ दे विच जिहड़ा पॉजिटिव नाल मेनली की चीज़ है कि जिहड़ा पॉजिटिवनेस नाल जुड़िया होया है वो हर एक चीज़ दे विच ब्यूटीनेस देखेगा, हर एक चीज़ दे विच उसनूं सुंदरता नजर आएगी। तो वो सुंदरता की है वो कित्थों आउंदी है? वो इंसान तभी सुंदरता के कंसैप्ट नूं धारण कर पाउंदा है जदों उसने एजुकेशन प्राप्त की है। तो ये जिहड़ी एजुकेशन सानूं सुंदरता के भावां नाल जोड़दी है, तो वो सुंदरता के भाव एजुकेशन के फिलासफी के थ्रू ही लए हुंदे ने। क्योंकि फिलासफी की एक मेन ब्रांच का जिहड़ा हैगा एक टॉपिक है जिस दे विच सुंदरता बारे दस्सिया। सत्यम शिवम सुंदरम, तुसीं सुणिया भी होना कि जिहड़ा सच है वो शिव है और जिहड़ा शिव है वो बहुत अति सुंदर है, भी बहुत ही ज्यादा सोहना है। तो ये फिलासफी की एक धारणा है। नैक्सट आ जाता बेटे लॉजिक। नैक्सट जे आपां गल करिए तो लॉजिक की, तो लॉजिक की है कहते एक इंसान जिवें जिवें वध पढ़ाई करी जाता है तो उसकी तर्क शक्ति जिहड़ी है वो वध जाती है। आर्गूमेंट्स की गल कह लो, जिवें कहते एक इलिटरेट पर्सन है उसको जवाब देने के बारे नहीं सोचता कि मैं की जवाब देवां या किस तरीके नाल तर्क करा कि किहड़ी चीज़ ज़्यादा वधिया है ते किहड़ी चीज़ घट है, मतलब कंपैरिजन किस तरीके नाल करे। पर एक जिहड़ा पढ़िया लिखिया इंसान है उसको इन्नी नॉलेज हुंदी है, उसकी जिहड़ी तर्क शक्ति है वो वधदी चली जाती है, क्रिटिसिज्म
वाली जिहड़ी पावर है वधी जाती है, क्योंकि उसको पता है कि जिहड़े कंसैप्ट ने है, जिहड़ी ये धारणा है जां इसदा जिहड़ा फ्यूचर दे विच की इफैक्ट होएगा, फ्यूचर दे विच इसदा नैगेटिव इफैक्ट होएगा या फ्यूचर दे विच इसदा पॉजिटिव इफैक्ट होएगा। कहते एक इंसान को अपनी इज्जत बढ़ाउंदे होए बहुत साल लग जाते हैं, तो एक छोटी जी गलती जिहड़ी है साडी इज्जत को बिल्कुल खत्म कर देती है। दैट मीनस जिहड़ी लॉजिक पावर है, लॉजिक तत्व है, कहते लॉजिक सानू तां ही आउंदा है जदों असीं एजुकेशन के थ्रू लैंदे हां। जदों एजुकेशन लैंदे हां तो एजुकेशन के थ्रू सानू एक लॉजिक की पावर मिल जाती है। पर लॉजिक आउंदा कित्थों है, लॉजिक टॉपिक आया कित्थों, वो सानू फिलॉसफी की देन है। फिलॉसफी ने सानू दस्सिया कि लॉजिक एक पार्ट है, एक तर्क एक पार्ट है जिस दे राहीं असीं अपने माइंड की पावर नूं जिहड़ी है इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी परसनैलिटी नूं डिवेलप कर सकते हैं कि असीं किस तरीके नाल अपने कैरियर को चूज करना है। तो लॉजिक ते क्रिटिसिज्म जिहड़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशन के फील्ड दे विच। लॉजिक की गल करिए तो मैथमेटिक्स दे विच भी लॉजिक आउंदा है, या अदर लैंग्वेजेस दे विच गल करिए तो लॉजिक के नाल निर्धारित कई जिहड़े ने कई जिहड़ियां एग्जांपल्स भी आउंदियां ने कि लॉजिक करना सिखाउंदे बच्चे नूं कि सारे ही एग्जांपल के तौर पे भी सारे ही जिहड़े फ्रूट्स ने वो एप्पल दे ने या एप्पल्स आर रेड ने कि फ्रूट्स आर रेड, जिहड़ा ना कंक्लूजन कढदे आपां वो लॉजिक की ही एक एग्जांपल है। तो जिहड़ी कहंदे यह चीज़ है कि बच्चे नूं जदों आ जाती है तो बच्चा हरेक चीज़ का कंक्लूजन या सारांश करने दे विच एक कला निपुण हो जाता है, स्किलफुल हो जाता है, उसमें क्वालिटी मिल जाती है कि हाउ टू इंप्रूव देयर लॉजिक स्किल। ठीक है जी बेटे, इस तो बाद नेक्स्ट जिहड़ा है नेक्स्ट पॉइंट है इसका फोर्थ पॉइंट, ग्रेट फिलोसोफर्स आर ग्रेट एजुकेशनिस्ट। ग्रेट फिलोसोफर्स आर ग्रेट एजुकेशनिस्ट। कहते ग्रेट फिलोसोफर ग्रेट एजुकेशनिस्ट किवें हो सकते हैं? कहते जदों आपां गल करिए महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी, टैगोर, रूसो, ठीक है जी, ग्रेट फिलोसोफर्स आर ग्रेट एजुकेशनिस्ट। ठीक है जी, ग्रेट फिलोसोफर्स आर ग्रेट एजुकेशनिस्ट या हैव बीन, लगा लो मतलब हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट। बेटे आर की जगह पे ना हैव बीन यूज करो क्योंकि वो हो चुके हैं ना, हैव बीन। ठीक, ग्रेट फिलोसोफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट। जे ग्रेट एजुकेशनिस्ट की गल करिए जिवें महात्मा गांधी ने एक आपां नूं थ्योरी दित्ती है, मतलब एक कंसैप्ट दिता है स्टडी का कि वो कंसैप्ट की है बेसिक एजुकेशन का। बेसिक एजुकेशन का, बेसिक एजुकेशन की गल करिए तो महात्मा गांधी ने सानू बेसिक एजुकेशन दित्ती है। और बेसिक एजुकेशन के हिसाब नाल कि एक मुढ़ली जिहड़ी सिक्ख्या जरूरी है, कंपलसरी है जो बच्चे